السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں غربت جانا بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 17۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں۔ مرحا راجپوت کے میں نے کئی ناولز پڑھے ہیں، اب تک کہ آپ کا سب سے فیوریٹ ناول کون سا رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد ایک اور ناول ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی مرحا راجپوت کا، اور یہ بھی انہی کا ناول ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اس ناول کو ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نورے کو سلانے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ تالیہ اپنا آدھا سامان بھی ولا میں لے آئی تھی، جس میں اس کی اور بائبل کی تصویریں بھی تھیں۔ کمرے میں آتے ہی تالیہ کی نظر انہی تصویروں پر پڑی جو اس نے بیڈ پر پھیلا رکھی تھی۔ تصویروں کو اکٹھے کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لائٹر کو پکڑتی سیدھا گارڈن کی بیک سائڈ پر آ گئی۔ وہاں پر تصویروں کو پھیلایا اس نے ایک غیر ارادی نظر تصویروں پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے ایک ہاتھ میں موجود تصویر کو پکڑی لائٹر کی مدد سے فوراً ہی جلا کر ان سب تصویروں پر پھینک دی، جس کی وجہ سے وہ سب تصویریں ایک ساتھ جلنے لگیں۔ دھواں اڑنے لگا، آگ مزید بڑھنے لگی جب باران خان زادہ اس کی تلاش میں گارڈن کے پیچھے سے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر اس کی جانب آیا۔ تالیہ تم اس وقت یہاں پر اور یہ سب؟ باران بھڑکی آگ کو دیکھتا اس کی جانب بڑھا جو اس آگ میں اپنا ماضی بھی جلا دینا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ کچھ تصویریں جلانی تھیں۔ باران کی جانب دیکھتے فارمل لہجے میں بولتے اس نے اپنے گلے میں موجود لاکٹ اتار کر اگلے ہی پل اس تیز آگ میں پھینک دیا۔ تو باران نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم نے لاکٹ کیوں جلا دیا؟ باران ان تصویروں کا تو سمجھ چکا تھا، مگر لاکٹ جلانے کی کیا وجہ تھی؟ یہ لاکٹ مجھے بائبل نے دیا تھا اور میں اب اس کی کوئی بھی یاد اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی۔ باران اب اس پر نظر کیسے رکھے گا؟ تو اس نے تو لاکٹ ہی جلا ڈالا تھا۔ آج سے میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں گی۔ تالیہ کا لہجہ اٹل تھا۔ اچھا، پھر کیا سوچا نئی زندگی شروع کرنے کے لیے؟ باران اس شعلوں کی طرح اپنی جانب آتی آگ کو دیکھنے لگا تو اس نے تالیہ کا بازو پکڑ کر آگ سے تھوڑا سا دور کیا۔ مطلب پرانی یادوں کو بھلائے، میں ایک نئی شروعات کروں گی اچھے طریقے سے۔ اور فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ فیوچر کے بارے میں ابھی ڈیپلی کچھ سوچا نہیں۔ اچھا، تو شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باران نے اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے چاہے۔ ابھی سوچا نہیں میں نے۔ تالیہ نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تو کب سوچو گی؟ اگر کسی نے پرپوز کیا تو کیا شادی کر لو گی؟ باران کا لہجہ اور انداز تالیہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ہاں، اگر لڑکا اچھا ہوا تو کر لوں گی۔ تالیہ جانتی تھی اس کا اشارہ اپنی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بتاؤ کب بارات لے کر آؤں؟ باران شرارت سے بولا تو تالیہ نے شرماتے ہوئے باران سے نظریں چرائی۔ بارات لانے سے پہلے پرپوز کرنا ضروری ہے، ورنہ میں انکار بھی کر سکتی ہوں، تالیہ نے چھیڑنے والے انداز میں مغروری لہجے میں کہا۔ تو باران نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اس کے نخروں پر تو جان بھی قربان، یہ تو ذرا سا مذاق تھا جس پر باران خان زادہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا اپنی آنکھیں بند کر کے مسکرایا۔ پھر اگلے ہی لمحے گارڈن کی طرف جاتے اس نے سیاہ گلاب کا پھول توڑتے تالیہ کی جانب بڑھتے اپنی نیز پر بیٹھ کر اسے پرپوز کیا۔ تالیہ تبریز خان سے تالیہ باران خان زادہ کا سفر طے کرو گی؟ کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ باران کا نئے انداز میں پرپوز کرنا تالیہ کے دل میں کرنٹ سا لگا گیا۔ جتنی اسے باران سے چڑ تھی اب اتنا ہی وہ باران کو پسند کرنے لگی تھی۔ سوچ کر جواب دوں گی، ایک ہی ادا میں اس کے ہاتھ سے سیاہ گلاب کا پھول لیتی وہ شرماتی ہوئی اسی وقت وہاں سے نکلتی سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ رات کو 1 بجے آریان پاشا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا ہانم صوفے پر بیٹھی کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ دبے دبے قدم اٹھاتا وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تو ہانم نے منٹ سے پہلے خدا حافظ بولتے کال کو بند کر دیا۔ کس سے کال پر بات کر رہی تھی؟ رعبدار لہجے میں بولتے اس نے ایک نظر ہانم کے موبائل پر ڈالی جو وہ شاید چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دوست تھی میری، ہانم نے جلدی سے جھوٹ بولا، جبکہ وہ ایم جے سے بات کر رہی تھی۔ اگلی پلاننگ کے متعلق 1 کپ کافی بنا دو گی؟ پیشانی کو مسلتے آریان پاشا سپاٹ لہجے میں بولا تو ہانم سر کو خم دیتی اٹھ کھڑی۔ موبائل کو صوفے پر ہی رکھتی وہ اٹھ کر جانے لگی جب آریان نے اسے دوبارہ سے مخاطب کیا۔ اسٹرانگ کافی ہونی چاہیے، آج پوری رات میں سونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آریان کا انداز عجیب سا ہی تھا تو ہانم سر جھٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ اس کے جاتے ہی اس کے موبائل کو پکڑ کر چیک کرنے لگا، جس کا استعمال وہ آریان پاشا کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ آریان نے اس کے موبائل کو کھولنا چاہا مگر لاک کی وجہ سے نہ کھلا۔ دوبارہ سے اس کا موبائل وہیں پر رکھتے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا، بیڈ پر اچھلتا اپنا ٹاول
उछालता अपना टॉवेल उठाकर वॉशरूम में चला गया। कॉफ़ी बनाकर ट्रे में कप को रखती वो आर्यन पाशा के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले आई, लेकिन वो कमरे में नहीं था, नहा रहा था। इसलिए हानम ने साइड टेबल पर ट्रे को रखते खुद सोने की गर्ज से बेड पर लेट गई। सुबह से न जाने की उसका मूड ऑफ था, ये सोचकर ही दिल कांपने लगता था कि अगर आर्यन ने उसे फिर से तलाक दे दी, आज तो बस दो दी थी, कल को वो तीसरी देकर उसे अपनी ज़िंदगी और घर से निकाल देगा। हानम खुद को कैसे संभालेगी और मोहब्बत को बीच राह में कैसे छोड़ दे, बेशुमार सोच उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। उसका हुस्न टपकता था, उस पर हर लड़का अपनी जान वार देता था, मगर आर्यन पाशा क्यों नहीं पिघल रहा था। अभी वो सब सोच ही रही थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और आर्यन टॉवल से बाल रगड़ता कमरे में दाखिल हुआ। खुले ट्राउज़र पर उसने शर्ट नहीं पहनी थी, कसती जिस्म से पानी के कतरे टपकने लगे। उसका फौलादी सीना बाहर को हुआ था। टॉवल से पानी को खुश्क करते ही वो एक नज़र जानबूझकर सोती हानम पर डालता, ड्रेसिंग के पास जाता, बॉडी स्प्रे का बेजादरीक इस्तेमाल करता। बेड की दूसरी जानिब आता, कॉफ़ी का मग उठा गया। बेड पर बैठकर कॉफ़ी पीने के दौरान उसकी नज़रें हानम पर ही टिकी हुई थी, जो आर्यन की जानिब पुश्त किए ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे वो कब से सो गई हो। नीम गर्म कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरते उसकी नज़र हानम की कमर से जा टकराई, जो शर्ट सरकने की वजह से अब बरहना हो रही थी। कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए वो ब्लैंकेट को खोलकर हानम पर ओढ़ते खुद उसके बिल्कुल साथ लेट गया, उसकी जानिब रुख किए तो एकदम आर्यन की इस कदर बेबाकी पर हानम की आंखें झपाक से खुली। आर्यन को क्या हो गया था? वो हानम के इतना करीब क्यों हो रहा था? हानम का तो अचानक से ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया, जबकि आर्यन ने उसकी गर्दन में मुंह देते उसके बालों से आती ताज़ा खुशबू को अपने नाक की नथों के जरिए खुद में उतारा। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। आर्यन ने बाजू उसके गिर्द हायल करते उस पर अपनी गिरफ्त तेज की। दफतन हानम का दिल फुल तेज रफ्तार में धड़कने लगा। सॉरी हानम, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, बस सुबह मुझे बहुत गुस्सा था, इसलिए मैं ये सब बोल गया। मुल्तजी लहजे में बोलते आर्यन ने उसके कान में सरगोशी की। आर्यन के पल में बदलते रूप में वो उलझी और कशमकश का शिकार हुई। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता हानम, बल्कि मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है, जिसका एहसास मुझे अब हो रहा है। तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल है, मैं तलाक का तो सोच भी नहीं सकता। आर्यन की मीठी और झुकी हुई आवाज़ हानम के चारों खाने चित कर गई। उसे तो अपनी समातों पर यकीन ही न आया। आर्यन पाशा हानम से मोहब्बत का इजहार कर रहा था। हानम को यकीन न आया। जवाब नहीं दोगी? नाराज़ हो क्या? आर्यन पाशा उसका रुख अपनी जानिब करने लगा, मगर इससे पहले हानम खुद ही अपना रुख मोड़ती खुफगी से उसे देखने लगी। तो क्या नहीं होना चाहिए? मुंह लटकाकर सवाल पर उल्टा सवाल किया गया। इतनी जल्दी वो आर्यन की बातों में आ गई थी, जबकि आर्यन ने हानम के नाराज़ चेहरे को देखा। हो जाओ हो जाओ, मैं मना लूँगा। आर्यन का एक हाथ तो उसकी कमर पर ही था, मगर दूसरा हाथ उसने हानम के चेहरे पर नरमी से रखा तो हानम के दिल में कुछ हुआ। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन वो तो आर्यन की मुस्कुराहट में ही खो गई। वो शख्स आज मुस्कुरा रहा था जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा सजा होता था। कैसे मनाएंगे आप? मैं तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ आपसे। हानम ने मासूमियत से बोलते मुंह बसोरा तो आर्यन ने उसकी गाल को सहलाया, जो मिनट में गुलाबी हो गए। तुम देखना चाहती हो फिर? आर्यन ने आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ देखा तो हानम ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। आर्यन पाशा उसके इतने करीब था, वो भी अपनी मर्जी से। ये सब उसे किसी ख्वाब से कम ना लगा। हानम, तुम कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हो। उसे देखते तहे दिल से तारीफ की गई। क्या सच में? अपनी तारीफ सुनते ही वो चहकी, जबकि आर्यन को अब पूरा यकीन हो गया था कि वो झिल्ली लड़की जाने अनजाने में उससे प्यार कर बैठी है। यूं ही नहीं, वो उसके लिए अपनी नब्ज काटने को तैयार थी। ये देखकर वो तीनों ही इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हानम आर्यन से मोहब्बत कर बैठी है। हाँ ना एक बात हाँ ना, एक बात पूछो तुमसे, उसकी आंखों में देखते हुए मीठी आवाज़ में बोला तो हानम ने इस बात में सर हिलाया। तुमने पहली दफ़ा कहाँ देखा मुझे? मतलब तुम्हें प्यार कैसे हुआ? आहिस्ता आहिस्ता वो प्यार से अब सारी बातें गुलवाना चाहता था, लेकिन हानम एकदम से कशमकश का शिकार हुई। अब वो क्या बताती? उसका बुट्टा चुराते हुए आर्यन ने हानम का दिल चुरा लिया। वो एक दफ़ा रेस्टोरेंट में आपको देखा था। ठहराव से सोचकर बोलती है, पूरी तरह अपनी बात बदल गई। फिर निकाह करने के लिए तुमने मुझे जाल में फंसाया। आर्यन का लहजा संजीदा हुआ, जबकि उसके हाथ की उंगलियां हानम की कमर पर मुसलसल रक्स करने लगी। आपको हासिल करने के लिए ऐसा करना पड़ा। आधे सच और आधे झूठ को मिलाती हुई एक कहानी बना गई तो आर्यन ने अपना दूसरा हाथ जेब में डालते एक छोटा सा आला निकाला। मैं सोच रहा हूँ हमें हनीमून पर चलना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? हानम हनीमून वाली बात पर एकदम से ब्लश करने लगी। आप कह रहे हैं तो चले जाएंगे, मामूली सा शर्माते हुए हानम ने कहा। उसके लिए मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड चाहिए, आखिर पासपोर्ट भी तो बनवाना है। आर्यन की नचाती उंगलियों पर हानम अचानक से सुर्ख टमाटर हो गई।
جبکہ آریان اپنے پلان میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اسے ہانم کو مدہوش ہی تو کرنا تھا۔ کہاں جانا چاہتی ہو، سوئٹزرلینڈ یا ملیشیا؟ آریان نے ہانم کے چہرے کی جانب دیکھا جو آریان کی نظروں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ آپ جہاں لے چلے، میں تو بس آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے ہم قدم چلنا چاہتی ہوں۔ ہانم کو اپنے آس پاس اتنی اڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیوں نہیں میری جان، تم بس مجھے صبح ID کارڈ دے دینا، آریان نے کہا تو ہانم نے سر کو اس بات میں خم کیا۔ جبکہ آریان کا پہلا مقصد تو پورا ہو گیا، اب دوسرے کی باری تھی۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے سارے راز جاننا چاہتا تھا۔ نزدیک آؤ میرے، آریان کی نشیلی آنکھیں ہانم کا دل ڈولنے لگی تو ہانم اس کی بات پر کان دھرتے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے تھوڑا نزدیک ہوئی۔ جبکہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے آریان پاشا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا جاسوسی آلہ اسی وقت پھرتی کی رفتار سے ہانم کی کمر میں کھبا دیا، جس کی چبھن پر اس کے ہونٹ ہلے، مگر آریان نے اگلے ہی لمحے ہانم کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کیا تاکہ اس کا دھیان GPS کی جانب نہ جائے جو اس نے اس کی باڈی میں فٹ کر دیا تھا۔ دوسرا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ تمہیں نہیں لگتا اس حسین لمحے کو ہمیں یادگار کے طور پر کیپچر کرنا چاہیے؟ آریان نے بے خودی میں ہانم کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلائی۔ میں بھی اس حسین لمحے کو کیپچر کرنا چاہتی ہوں۔ ہانم نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو آریان نے اپنا موبائل پکڑا۔ اوہ ہو ہانم، میرا موبائل تو سوئچ آف ہو گیا۔ آریان نے اپنے موبائل کو تھامتے آن کرنا چاہا۔ کوئی بات نہیں، میرے موبائل میں کیپچر کر لیتے ہیں۔ ہانم نے ہاتھ آگے بڑھا کر کشن کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا تو آریان کے لبوں پر طائرانہ مسکراہٹ رنگی۔ اچھا یہاں آؤ میرے پاس، آریان نے اپنی بغل میں جگہ بناتے ہانم کو اپنے ساتھ لیٹنے کا کہا تو وہ لیٹ کر موبائل کو آن کر گئی۔ اتنی چالاک ہونے کے باوجود بھی وہ کیوں نہیں سمجھ پائی تھی کہ آریان کا اس کے نزدیک آنے میں صرف اپنا فائدہ شامل تھا، یا پھر وہ بھی محبت میں اندھا اعتبار کرنے لگی تھی۔ موبائل کو ہاتھ میں پکڑے وہ آریان کے سامنے ہی پاس ورڈ کو کھولتی کیمرہ آن کر گئی، جبکہ اسے پاس ورڈ کھولتے دیکھ آریان کی آنکھوں میں فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تیسرا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، وہ پاس ورڈ ہی تو پتہ لگوانا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے آریان نے اپنا ہاتھ اوپر کی جانب کرتے ان کا ایک حسین منظر کیمرے میں اتارا۔ ہانم نے جس مقصد کے لیے آریان سے شادی رچائی تھی وہ ابھی تک پورا نہ ہو سکا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ آریان کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گی اور اس کی زندگی سے نکل جائے گی، مگر اس کی سوچ اس کے دل پر حاوی ہو گئی اور وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی آریان کو ہی اپنے دل کی جائیداد بنا گئی۔ لیکن ہانم کے اس کی ہی جائیداد کیوں چاہیے؟ ہانم کو اس کی جائیداد ہی کیوں چاہیے تھی؟ شاید اس لیے کیونکہ جلد ہی ساری حکومت پاشا صاحب کے ہاتھ آنے والی تھی، اور کیوں نہ وہ ہانم کے ہاتھ لگ جائے تاکہ دو تین سال آرام سے گزریں۔ صبح کا سورج عروج پر تھا، وہ سبھی جلدی اٹھ جایا کرتے تھے اور آج بھی سب ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، مگر زیام شاہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آریان اور ہانم اپنے کمرے سے نکلتے مسکراتے ہوئے ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ نورے اور تالیہ نے مل کر ناشتہ بنایا تھا جس سے وہ سبھی لطف اندوز ہونے لگے۔ خیر تو ہے، تو بڑا مسکرا رہا ہے آج، باران نے اپنے ساتھ بیٹھے آریان کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں بس خوشی ہی ایسی ہے، شوق انداز میں بولتے آریان مسکرایا تو باران نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ایک رات میں جو تو اتنا خوش ہو رہا ہے؟ باران نے ایک نظر ہانم پر بھی ڈالی جو مسکراتی ہوئی شرما رہی تھی۔ کب سے بیچاری اپنا حق مانگ رہی تھی تو میں نے بھی دے دیا۔ آریان کی بات سنتے باران کو جوس پینے کے دوران ایک دم اچھوکا لگا۔ واٹ نہیں، یس، اور ویسے بھی یہ پلان تم دونوں کا ہی تو تھا۔ آریان نے فرصت سے شانے اچکائے۔ سالے ہم نے تو بس تھوڑا سا فلرٹ کرنے کا بولا تھا، پراٹھے کا نوالا توڑتے باران نے تنفر سے کہا تو آریان نے اس کے بازو پر ایک چپت رسید کی۔ بیوقوف، تینوں مقصد پورے ہو گئے، اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ آریان نے ہانم پر اپنی نظروں کا تسلط باندھا جو نورے کو کچھ سمجھا رہی تھی اور تالیہ بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ نہا دھو کر فریش ہوتے وہ اب آدھے ناشتے کے دوران ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ ڈارک بلو شرٹ اور وائٹ جینز میں وہ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ نورے نے ایک نظر اسے دیکھتے بے رخی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، سب پر ایک نظر ڈالتا وہ باران کے ساتھ جا بیٹھا۔ باران بھیا، آپ انہیں بولے یہ جائے، یہاں سے انہیں ناشتہ نہیں ملے گا۔ ناراضگی سے بولتی وہ زیام شاہ کی جانب دیکھنے سے گریز کرنے لگی تو باران اور آریان نے اسی وقت ایک کہا لگایا، چل بیٹا اٹھ اور نکل یہاں سے۔ باران کے بولنے پر زیام نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تو زبان بند رکھ ورنہ تالیہ سے کہہ کر تجھے کٹ پروا دوں گا۔ دانتوں کو پیس کر بولتے وہ باران کے قریب ہوا، فی الحال تو اپنی فکر منا، یہ نہ ہو تجھے بھرے مجمع میں
सरेआम अपनी बीवी के कदमों में बैठना पड़े। बहरान का अंदाज चिढ़ाने वाला था। जब ज़ियाम शाह उसे नज़रअंदाज करता, नूरे की जानी मुतवज्जा हुआ। नूरे, मैं आपके बने हुए हाथों का ही नाश्ता करूँगा। ज़ियाम शाह ने नूरे को मुखातिब किया तो नूरे ने महज हंकारा भरा। ठीक है, आप नहीं जा रहे तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। अर्शी को पकड़े वो कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। नूरे, ऐसा तो मत करो मेरे साथ। ज़ियाम का लहजा ढीला पड़ा, मगर नूरे बगैर उसकी बात पर कान धरे वहाँ से चली गई। जाओ ज़ियाम, अब अपनी मिसेस को मनाओ जाकर। खानम ने शौकिया कहा तो ज़ियाम उसी वक्त कुर्सी छोड़ता उसके कमरे की जानिब बढ़ा जो वो लॉक कर चुकी थी। नूरे, दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। दरवाजे के बाहर खड़ा होता वो दरवाज़ा बजाने लगा। मैं नहीं खोलूंगी, आप जाएं यहाँ से। दूसरी जानिब से नूरे बुलंद आवाज़ में बोली, यार मेरी बात तो सुन लो, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाएं यहाँ से। नूरे का लहजा ज़िद्दी और अटल था। मुझे एक मौका तो दो बात करने का। वो सब ज़ियाम शाह को ही देख रहे थे, मगर उनके दरमियान होती गुफ्तगू उन्हें सुनाई न दी। मैं नाराज़ हूँ आपसे, सख्त वाली सुन लिया आपने। नूरे ने भी ठान रखी थी ज़ियाम शाह को तड़पाने की। तुम दरवाज़ा खोलोगी तो मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर दूंगा ना। उसने एक बार फिर से दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा तो नहीं खुलेगा, जो करना है कर ले। नूरे अभी भी अपनी बात पर कायम थी। अशी को बेड पर बिठाते इर्द गिर्द कुशन सेट करती और फिर से दरवाजे के पास आई। क्यों मुझे तड़पा रही हो? आपने भी तो मुझे बहुत तड़पाया है। नूरे न रूठेपन से बोली तो ज़ियाम शाह ने अपनी पेशानी को मसला, तुम बदला ले रही हो मुझसे? ज़ियाम ने जांचते लहजे में पूछा तो दूसरी जानिब से कोई जवाब ना आया। मुझे मुर्गा बनवा लेना, मगर दरवाज़ा खोल दो वरना मैं तोड़ दूंगा। ज़ियाम शाह अपना एक कंधा दरवाजे की जानिब करता उसे तोड़ने के इरादे में लग रहा था। कान पकड़कर मुर्गा बनवाऊंगी। नूरे ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, मगर ज़ियाम शाह जो दरवाज़ा तोड़ने के इरादे में था, उसी वक्त दरवाज़ा खुलने की वजह से नूरे की जानिब लपका और अपना तवाज़न बरकरार न रखने की सूरत में वो दोनों एक साथ ज़मीन बोस हुए। हानम, तुम बहुत ग्लो कर रही हो। तालिया ने उसके चमकते चेहरे को नोटिस किया तो हानम गहरा मुस्कुराई। तुम्हें पता है, आर्यान को मुझसे प्यार हो गया। हानम ने सोचते ही एक मज़ेदार झरझरी ली तो तालिया को भी उसकी बात पर खुशी हुई। वाह, ये तो अच्छी बात है। हानम, आर्यान को मोहब्बत करवाने में तो तुम कामयाब हो गई, मगर अपने दिल के बारे में क्या सोचा? तालिया, मेरा दिल मजबूर है उससे मोहब्बत करने के लिए। मैंने खुद को बहुत रोका, मगर ये मेरे बस में नहीं है। वो तो समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे इरादे क्या है? अब तुम आर्यान से डिवोर्स नहीं लोगी, तुम उसके साथ ही रहोगी? तालिया ने तशवीर से पूछा। हाँ, मेरा इरादा बदल गया। अब मैं ज़िंदगी भर आर्यान पाशा के साथ रहूंगी। उसकी खुशी देखकर तालिया के जिस्म में भी एक खुशी की लहर दौड़ी। तुम बताओ, तुम्हारा और बारान का सीन क्या कहाँ तक पहुँचा? तुम्हें पता है, कल उसने मुझे प्रपोज किया दोबारा से शादी के लिए। तालिया गर्मजोशी से बोलती उसे बताने लगी तो हानम उसी वक्त उसकी जानिब मुतवज्जह हुई। क्या सच में? फिर क्या जवाब दिया तुमने? कुछ खास नहीं, मैंने बोला सोचकर बताऊंगी। सरसरी सा बोलते तालिया ने शाने उचकाए। फिर क्या सोचा तुमने? तालिया, देखो, बारान बहुत अच्छा लड़का है। मैंने तुम्हारे लिए उसके दिल में मौजूद मोहब्बत और इज्जत खुद महसूस की है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बस बिना सोचे अब तुम उसे हाँ कर दो। पहले ही बहुत तरसा चुकी हो तुम उसे। हानम का अंदाज समझाने वाला था तो तालिया उसकी जानिब देखती मुस्कुराई। यही सब सोचकर ही तो मैंने फैसला किया है। बोलते हुए उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ा तो हानम पूरी सुनने के लिए बेचैन हुई। क्या फैसला लिया तुमने? यही कि मैं बारान से शादी करूंगी और शादी की तैयारियां शुरू करो। परसों से शादी के फंक्शन स्टार्ट होंगे। अब बिना वक्त ज़ाया किए मैं बारान की होना चाहती हूँ, उसके नाम के साथ मंसूब होना चाहती हूँ। तालिया के बोलने की देर थी जब हानम झटके से अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उसकी जानिब लपकती उसके गले लग गई। उसीली नज़रों से ज़ियाम शाह के चेहरे को देखती वो जैसे ही उठने लगी, उसी वक्त ज़ियाम ने उसकी कमर में बाजू हायल करते उसे फिर से खुद पर गिराया। इतने नज़दीक आकर दूर नहीं जाया करते। ज़ियाम शाह की पुरस्रार आवाज़ पर नूरे ने सटपटा कर उसकी तरफ देखा, मगर बोली कुछ नहीं। एक मौका दो अपने ज़ियाम शाह को, मैं उम्मीद से कहता हूँ इस दफ़ा तुम्हें गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी। बस एक दफ़ा मुझे माफ़ करके मुझसे बात कर लो, मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे। ज़ियाम बोल रहा था लेकिन वो नज़रअंदाज करने लगी और बगैर जवाब दिए सहूलत से दूर होकर बैठ खड़ी हुई तो ज़ियाम शाह भी उसे मज़ीद नाराज़ देखकर उठ खड़ा हुआ। नाराज़ हो तुम? अपनी अपनी स्लीवलेस को अपनी स्लीव्स को कोहनियों तक फोल्ड करते तासिफाना लहजे में पूछते उसकी जानिब बढ़ा और वो नज़रें झुकाए खामोशी से अपनी जगह पर खड़ी रही, बहुत सख्त वाली। अपनी आंखों में आई नमी को पड़े ढकेलते अपनी गहरी आंखों से पलकों की बौछार उठाकर ज़ियाम शाह को देखा। फिर कैसे मानोगी? ज़ियाम शाह ने महसूस किया उसकी आंखों में पानी की वजह से चमक वाज़ेह थी। मुझे नहीं पता, महज 3 लफ्ज़ों में जवाब देती वो अपने हाथ की हथेलियों को मसलने लगी। नूरे, मुझे सज़ा दे लो, मगर नाराज़ मत होना मुझसे, तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होगी। ज़ियाम ने नरमी से उसका हाथ थामा
तो नूरे ने कोई एहतजाज नहीं किया, जबकि दिल मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ज़ियाम शाह को एक मौका देने को राज़ी था। मैं सज़ा दूंगी आपको, मैं आपको मुर्गा बनवाऊंगी। कल वाला मंजर सोचते नूरे की आंखों में फिर से नमी आने लगी। तुम्हारी हर सज़ा मुझे दिलो जान से मंजूर है, बस अपने ज़ियाम शाह को माफ़ कर दो। इतनी आसानी से नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं। एक लंबा सांस हवा में तहवील करती हुए नम लहजे में बोली। तो ज़ियाम की उसके हाथ में पकड़ मजबूत हुई। मुझे मंजूर है तुम्हारी हर शर्त, तुम बस हुक्म करो। ज़ियाम फौरन से ही हामी भरते हुए राजी हो गया। नूरे का इरादा थोड़ा और तड़पाने का था, मगर वो ठहरी नरम दिल इससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहा जाता था। फिर यहाँ तो दिल का मामला था, मुमकिन ही नहीं था कि नाराज़गी होती। आप दोबारा मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। मासूमियत से बोलती हुई ज़ियाम का दिल घायल करने लगी। ज़ियाम शाह की मजाल जो दोबारा मैं कभी अपनी नूरे पर हाथ उठाऊं। रौबदार लहजे में बोलते उसने नूरे को अपने साथ पिन किया। आप वो गंदा वाला काम भी छोड़ देंगे? ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, बस पूरा दिन अपनी बीवी के सामने ही बैठा रहूंगा। ज़ियाम ने प्यार से उसके बालों पर अपने नरम लब रखे तो नूरे ने उसके लम्स को महसूस किया। आप गन को देखना तो दूर पकड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, आज से मैं अपनी नज़रें और हाथ सिर्फ तुम तक महदूद रखूंगा। ज़ियाम शाह ने उसके गिर्द अपना घेरा मजबूत किया। और कुछ मेरी जान? नूर उससे दूर हुई तो ज़ियाम शाह ने उसकी आंखों पर अपनी नज़रों का तसल्लुत बांधा। अगर कभी आपने मुझे डांटा तो मैं फिर से नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। नूरे ने एक आखिरी शर्त रखी तो उसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। फिर अगले ही लम्हे ज़ियाम शाह ने नूरे को पकड़कर दीवार के साथ पिन किया। ऐसी नौबत दोबारा नहीं आएगी, कहते ही ज़ियाम शाह ने अपने दहकते हुए लब नूरे की पेशानी पर रखे। एकाएक नूरे का दिल तेज़ रफ्तार से धड़का। अभी उसने मजीद जसारत करनी थी जब हानम और तालिया धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलती एक साथ अंदर दाखिल हुई। उनके विला में ऐसे स्प्रिंग वाले दरवाजे थे जो खुलने पर खुद ही बंद हो जाते थे। ओहो, गलत टाइम पर एंट्री मार दी हमने। इन दोनों को इतना करीब देखकर हानम शौक अंदाज में बोली तो नूरे फुर्ती की रफ्तार से उससे दूर हुई। चलो शाबाश, शर्मिंदा होकर अब उल्टे कदमों से ही वापस चली जाओ। हानम को देखते ज़ियाम ने भी शरारत से कहा। हम तो शर्मिंदा नहीं हुए, हमने थोड़ी ना कुछ किया। जो लोग कुछ कर रहे थे वो शर्मिंदा हो। जोमानी सी बात करती वो ज़ियाम को हंसने पर मजबूर कर गई। वैसे टाइमिंग तो उनकी गलत है, सुबह सुबह का वक्त है और एक अदद बच्चा भी सामने ही बैठा है। तालिया ने भी बात लगाना ज़रूरी समझा तो ज़ियाम की बजाय नूरे शर्मिंदा हुई। तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करती? अशी को अपने साथ ले जाओ, थोड़ी देर हमें भी तन्हाई दे दो। बाकी नाइट मोड मैं खुद ही कर लूँगा। ज़ियाम शाह ने अपने मतलब की बात की तो हानम कमर पर हाथ रखती उसकी जानिब बढ़ी। तुम एक काम करो, वहाँ हमें नूरे के साथ अकेला छोड़ दो। हमने तालिया की शादी की प्लानिंग करनी है। क्या शादी, वो भी तालिया की? ज़ियाम एकदम से हैरान हुआ। हाँ, तालिया की शादी, वो भी परसों। हानम ने उसे मजीद हैरान किया। मगर किससे? तुम्हारे उस लफंगे दोस्त से। अल्लाह बचाए हानम तुम्हारी ज़बान से। मगर मैंने बारान को बता दिया ना तो उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ा। मुझे पता तुम नहीं बताओगे, इसलिए तो तुम्हारे साथ मजाक कर लेती हूँ। लेकिन जाओ और उसे बताओ कि शादी की तैयारियां शुरू शुरू करो। उसकी दुल्हन मान गई है। बहुत फास्ट है तुम लड़कियों की सर्विस। तालिया की जानिब देख कर बोलते वो कमरे से बाहर निकलता बारान के कमरे की ओर बढ़ गया। अंकल, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे उसके बारे में हर चीज़ का इल्म हो जाए। उसका मेरी ज़िंदगी में आने का क्या मकसद है, मैं जानना चाहता हूँ। कर्नल अंकल के मुकाबिल बैठा वो धीमी आवाज़ में सलीके से गोया हुआ। तुम्हारी बात ठीक है मेजर, लेकिन अगर हमने उसे जल्द से जल्द हेडक्वार्टर के हवाले ना किया तो वो फिर से कुछ न कुछ चुरा लेगी। कर्नल अंकल ने अपना मसला पेश किया तो आर्यन ने पुरसुकून सांस लेते उनकी बात को समझने की कोशिश की। यकीनन वो तुम्हारी ज़िंदगी में भी माल दौलत की वजह से आई ताकि तुम से बआसानी वो सारा कुछ हथिया सके। उन्होंने अंदाज़ा लगाया तो आर्यन ने उनकी बात पर नज़रसानी की। चोरनी कहीं की, मेरा दिल चुरा गई, अब और कुछ क्या चुराएगी? आर्यन पाशा बस सोच कर ही रह गया। अंकल, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ दिन के लिए आप उसे मेरे पास ही रहने दें। वो मुझ पर यकीन करती है। यकीनन अनकरीब मैं उसके सारे राजों से बाखबर हो जाऊंगा। आर्यन की बात भी काफ़ी हद तक सही थी, मगर हानम से दूरी का सोचकर न जाने क्यों उसका दिल लरस जाता था। अगर तुम मुझे गारंटी दोगे इस दौरान वो कोई चोरी नहीं करेगी तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। लेकिन एक बात याद रखो, आज नहीं तो कल उसे तुमसे दूर होना ही है। उसकी असल जगह सलाखों के पीछे है और मेरे ख्याल से अदालती निज़ाम उसे फांसी की सख्त सज़ा सुनाएगा। कर्नल अंकल के आखिरी अल्फाज उसके दिल में किसी नुकीले तीर की तरह लगे। बहुत जल्द हानम का नाम और निशान वो इस दुनिया से ही मिटा देंगे। ये सोच आते ही उसने फौरन से झरझरी ली। अंकल, मैं समझ चुका हूँ, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। आर्यन पाशा का अंदाज प्रोफेशनल था, मगर दिल की हालत कैसी थी सिर्फ वही जानता था।
कब से हानम उसके साथ रह रही थी, कैसे मुमकिन नहीं था आर्यन पाशा को उससे लगाव ना होता, उसकी आदत ना होती, उससे मोहब्बत ना होती। 5 दिन है तुम्हारे पास, इसके बाद तुम्हारे और हानम के रास्ते अलहदा हो जाएंगे। कर्नल अंकल अपनी बातों से उसे न जाने क्या बावर करवाना चाहते थे। कहीं उन्हें भनक तो नहीं पड़ गई थी कि आर्यन को लगाव हो रहा है उस चोरनी से जिसने उसकी ज़िंदगी में आते ही उसका दिल चुरा लिया था। अंकल आप बेफिक्रे रहे, मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करूँगा। मेजर आर्यन पाशा काम में वफादारी बहुत ज़रूरी है। उनके बोलते ही आर्यन ने नज़र चुराते हुए सटपटाकर उन्हें देखा। क्यों वो ऐसी बातें कर रहे थे? आप जानते हैं अंकल, मैं अपना काम वफादारी से करता हूँ, इस बार भी कोई गलती नहीं होगी। आर्यन का अब मज़ीद रुकना मुहाल हो गया था। न जाने क्यों हानम के बारे में की गुफ्तगू उसके वजूद और दिल को झंझोड़ देती थी। उसे अपनी कैफियत की समझ नहीं आती थी। क्यों ये सब उसके साथ हो रहा था? न जाने उसकी किस्मत में मिलना लिखा भी था या नहीं, या फिर आर्यन पाशा को ज़िंदगी भर के लिए हानम की यादों में जीना था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नावल को अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।